Bismillahirrahmanirrahim. Today we start the rigid rotator. This rigid rotator is a model consists of two masses. This is a model consists of two masses separated by a distance r, separated by a fixed distance from one another. The distance between these two masses remain fixed during the rotation. This distance remain fixed during the rotations. Rigid rotator क्या है? This is a model which consists of two masses. These two masses are separated by a constant, a fixed distance. This distance remains fixed during the rotation. और किस लिए यूज़ करते हैं इस मॉडल को? Rigid rotator is a model for rotational spectra of the diatomic molecules. Rigid rotator is a model to explain the rotational spectra for rotational spectra of our diatomic molecules. In order to explain the rotational spectra of a diatomic molecule, this rigid rotator model is used. Rigid rotator क्या है क्या? This consists of two masses. Let these masses are M1 and M2. Two masses हैं M1 and M2. This is M1, M2. Distance between these two masses is R. And distance of M1 और इसका ये center of gravity है. So this is rotating around this center of gravity through an axis through the center of the gravity. Distance of M1 from center of the gravity, let this is R1. ये distance R1 है. इसी तरह distance from center of gravity to M2, this is R2. और दोनों के दरमियान distance ये R है. This is a rigid rotator. Rigid rotator consists of two masses, M1 and M2, separated by a distance R. And this model, this rotator is rotating through an axis. और axis कहाँ पर है? Through the center of the gravity. तो अब इसमें से R, this R is equal to R1 plus R2. ये हो जाएगा. And this is rotating through the center of the gravity, so we can say that M1 R1 is equal to M2 और R2. अब यहाँ से इससे अगर हम R2 निकाल दें तो क्या हो जाएगा? R2 will be equal to R minus R1. ये हो जाएगा. अब इसकी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर लेते हैं, देन वी गेट M1 R1 इज इक्वल टू M2 और R2 की जगह पर लिखते हैं R माइनस R1. ये हो जाएगा. रीअरेंज करते हैं, यानी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. M1 R1 इज इक्वल टू M2 R माइनस M2 और R1. इस R1 वाली साइड को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा M1 R1 प्लस M2 R1 इज इक्वल टू M2 और R. इसमें से R1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा M2 R1 कॉमन हो जाएगा तो M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M2 और R. So R1 is equal to M2R and M1 and M2. Similarly, R2 will be equal to ये R1 के लिए M2 है
तो R2 के लिए ये हो जाएगा m1 और R डिवाइडेड बाय m1 एंड m2। This is a rotating model. So the moment of inertia of the rotating body about the center of the gravity, the moment of inertia of rotating body about the center ऑफ ग्रेविटी। ये फिज़िक्स में आप पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके होंगे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ इक्वल टू I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसमें r1 और r2 की वैल्यूज़ लगा लेते हैं। तो m1 r1 है m1 r डिवाइडेड बाय m1 एंड m2 और स्क्वायर प्लस m2। r2 क्या है? नहीं, r1 है m2 और r2 है m1। r1 r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट इसको फर्दर रीअरेंज करते हैं। इसमें से r स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं। m1 और m2 m1 प्लस m2 स्क्वायर एंड r स्क्वायर प्लस m2 m1 प्लस m2 स्क्वायर और r स्क्वायर। अब इसमें से r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ इक्वल टू r स्क्वायर। अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? m1 m2 m1 प्लस m2 स्क्वायर और प्लस m2 एंड m1 और m1 प्लस m2 स्क्वायर और r स्क्वायर इसमें से कॉमन हो गया। अब इसमें से फर्दर फिर m1 और m2 कांस्टेंट ले लेते हैं। m1 और m2 अगर हम कांस्टेंट ले लें तो क्या हो जाएगा? ये m1 निकल गया, यहाँ से एक m2 निकल गया, तो बच जाएगा m2, क्योंकि स्क्वायर है ना, एक बच गया है, और m1 और m2 स्क्वायर प्लस, अच्छा m2 निकल गया और यहाँ से एक m1, तो बच जाएगा m1 और m1 एंड m2 स्क्वायर और r स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा m1 m2। जब एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 और m1 एंड m2 स्क्वायर एंड r स्क्वायर। ये एक इसमें से कट जाएगा, तो क्या बचेगा? I विल बी इक्वल टू, इधर ऊपर 1 आ जाएगा, m1 m2 1 एंड m1 एंड m2 एंड r स्क्वायर। r लिख सकते हैं m1 m2 m1 प्लस m2 एंड r स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड reduced mass, m1 m2 divided by m1, so this is reduced mass, so we can write I is equal to mu or r square, where mu is reduced mass, is called reduced mass. So two masses has been changed, replaced by single mass. Two masses object, and यहाँ पर इस केस में हमारे पास स्टार्ट में 2 masses आ रहे हैं ना,
तो इन टू मासेस को हमने एक मास से रिप्लेस कर दिया, रिड्यूस मास. तो दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब एज this is rotating, so we assume that the potential energy of the system is 0, so it has only the kinetic energy. So अब Schrödinger wave equation इसके लिए क्या है? अच्छा let the potential energy of the body of the model is 0, so it has only the kinetic energy, and let the kinetic energy let represented by T, and this is equal to 1/2 m1 v square v1 square and 1/2 m2 and v2 square. This is the kinetic energy. v1 and v2 are the linear velocity of m1 and m2. In terms of angular velocity, as linear velocity is related to angular velocity by this relationship, v is equal to omega r. तो इस तरह v1 हो जाएगा ओमेगा r1 और v2 है ओमेगा r2. अब ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं, then we get kinetic energy that is equal to T is equal to 1/2 m1 ओमेगा r, इस v की जगह पर ओमेगा r1 ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 की बजाय ओमेगा स्क्वायर एंड r2 स्क्वायर. ये हो गया. अब इसमें से 1/2 और ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं. 1/2 और ओमेगा स्क्वायर ये कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर. जब ये कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर. और ये किसके बराबर है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब ये एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं. एज एंगुलर मोमेंटम is L. So L and moment of inertia, these are related by omega I. तो काइनेटिक एनर्जी T हमारे पास है 1/2 ओमेगा स्क्वायर और I के बराबर है ना. अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ओमेगा स्क्वायर और I स्क्वायर डिवाइडेड बाई I, एक ही बात है. R ओमेगा I स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2I. अब ओमेगा I ये L के बराबर है, सो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2I. दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी. और I किसके बराबर है? वो in terms of reduced mass, T is equal to L square 2 and mu r square. So this is the kinetic energy. अब हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, यानी ये तो क्लासिकल ट्रीटमेंट है. अब क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट. The Schrödinger wave equations we have discussed earlier. I square plus 8 pi square और m divided by h square and E minus v psi is equal to 0. क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसमें ये टोटल एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है. पोटेंशियल एनर्जी 0 है. सो फॉर रिजिड रोटेटर दिस इक्वेशन विल बी plus
8 पाई स्क्वायर म्यू m की जगह पर म्यू एंड h स्क्वायर और e psi is equal to 0. So m is replaced by reduced mass. By solution of Schrodinger equation, by solution of this equation can be solved, and by solution of this equation it may be shown that the rotational energy level allowed to rigid rotator of diatomic molecules can be given by, and a solution of this equations gives that the rotational energy is Ej, where this is rotational energy, and this is equal to h square divided by 8 pi square I and j into j plus 1 in joules, where j is rotational level. J is equal to 0, 1, 2 and so on. These are rotational levels, are rotational quantum number. Rotational quantum number. The quantity j can have integral value from 0 to upward. In terms of wave number, चूँकि रोटेशनल स्पेक्ट्रा हम वेव नंबर में एक्सप्रेस करते हैं, तो therefore this E और ये एनर्जी के टर्म में है, तो we have to express this equation in terms of wave number. तो in terms of wave numbers, in terms of wave number, that is, this is wave number, and this is equal to Ej divided by Hc. कैसे? As we know, E is equal to h nu, और nu क्या है? c by lambda है, so E is equal to h c by lambda. और वेव नंबर कैसे कहते हैं? वेव नंबर इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा. तो अगर इस एच सी को इधर ले आए तो ये 1 ओवर लैम्डा हो जाएगा. तो E डिवाइड बाई एच सी इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा, और ये 1 ओवर लैम्डा क्या है? ये वेव नंबर कहलाता है. सो 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू वेव नंबर इज इक्वल टू E डिवाइड बाई एच सी. तो ये ई जे रोटेशनल एनर्जी है, divided by Hc is equal to wave number. R ठीक. अब E की वैल्यू क्या है? ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं. Then we have E है h square divided by 8 pi square I और hc and j in j plus 1. तो अब ये हो जाएगा पर सेंटीमीटर में, क्योंकि वेव नंबर है. अब इसमें से ये एक h और h कट जाएगा, तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर आई सी जे प्लस 1 h. अब ये सारे कांस्टेंट हैं, तो लेट दिस इज इक्वल टू b, j इंटू जे प्लस 1, वेयर b is h divided by 8 pi square I or c, and this is called rotational constant. So this equation gives the wave number for a rigid rotator.
wave number for a diatomic molecule rotating through an axis through the center of the gravity. तो अब अगर अगर हम 0 ले लेते हैं तो फिर वेव नंबर क्या हो जाएगा? When J is equal to 0, then wave number is equal to B 0 0 plus 1, तो ये 0 हो जाएगा. तो it means for J is equal to 0 or in ground state, the model is not rotating, the molecule is not rotating. Similarly, when J is equal to 1, फिर क्या हो जाएगा? Then frequency will be equal to, इस इक्वेशन में लगा लेते हैं ना, B 1 और 1 plus 1 2B. Similarly, when J is equal to 3, J is equal to 3, तो फिर क्या हो जाएगा? वेव नंबर क्या हो जाएगा? B और J is equal to 2, तो 2 and 2 plus 1, 6B. Similarly, J is equal to 3, then wave number will be equal to B 3 and 3 4 12B, and so on. So we can represent diagrammatically, graphically as इस तरह. अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर एक तरफ J ले लेते हैं और दूसरी तरफ रोटेशनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर आर ई रोटेशनल एनर्जी. व्हेन J इज इक्वल टू 0, वेव नंबर इज इक्वल टू 0. व्हेन J इज इक्वल टू 1, यहाँ पर ये 1 हो जाए तो वेव नंबर क्या है? 2B है. यहाँ पर ये 2B है. When J is equal to 2, then it is 6B. When J is डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, 2 है तो ये 6B हो जाएगा. When J is equal to 3, तो फिर इससे 12 आता है, इसका डबल यहाँ पर आ जाएगा ना. When 3, तो ये हो जाएगा 12B. इसी तरह when J is equal to 4, तो फिर क्या हो जाएगा? 4 और 20B. 4 के लिए 20B हो जाएगा, and so on. So in terms of difference in energy level, and when an object absorbs energy and let it changes from J is equal to 0 to J is equal to 1, तो इसमें कितना एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करना है? In terms of difference in energy, in terms of difference in energy, यानी कि जब मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, व्हेन इट एब्जॉर्ब एनर्जी देन इट मूव्स फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट, 2 से 3 या 3 से 4 एंड सो ऑन. एंड व्हेन इट लूजेस एनर्जी देन इट कम्स फ्रॉम हायर टू लोअर स्टेट, 4 से 3, 3 से 2 एंड 2 से 1, 1 से 0. एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ एनर्जी. तो अब इसमें डिफरेंस इन एनर्जी पर क्या है? तो लेट when it absorbs energy it changes from J is equal to 0 से J is equal to 1 तक by absorption of energy, then difference in energy delta nu क्या हो जाएगा? wave number in 1 minus wave number in 0 state, ऐसा हो जाएगा. तो wave number in 1 ये हो जाएगा B J into J plus 1 in state 1 minus B J plus 1 in 0 state, ये हो जाएगा. तो ये है, इसमें J is equal to 1 तक जाता है ना, तो 1 और 1 2, ये हो जाएगा 2B.
माइनस और ये से 0 आ जाएगा, सो 2b। यानी यहाँ से जब 0 से यहाँ तक आ जाता है, सो इट एब्जॉर्ब्स एन एनर्जी 2b and a line in the spectrum will appear at 2b। यहाँ पर एक लाइन 2b पर एक लाइन अपीयर हो जाएगा, वेव नंबर, ये स्पेक्ट्रम है। इसी तरह when j इज इक्वल टू 1 से j इज इक्वल टू 2 तक, यानी यहाँ से जब यहाँ तक इसने एब्जॉर्ब करना है तो फिर क्या होगा, यहाँ इसके लिए ये 2b पर लाइंस विल अपीयर इन दी लाइन इन दी स्पेक्ट्रम। इसके लिए क्या होगा, j इज इक्वल टू 1 टू j इज इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास चेंज इन एनर्जी विल बी इक्वल टू वेव नंबर व्हेन इट इज़ इन 2 माइनस वेव नंबर व्हेन इट इज़ इन 1। तो व्हेन 2 में है तो ये हो जाएगा b j प्लस 1 इन 2 स्टेट माइनस b j इंटू j प्लस 1 इन 1 स्टेट। जब ये 2 स्टेट में हो जाएगा तो 2 3 हो जाएगा, यानी 1 से 2 तक। अच्छा 2 है तो 3 अच्छा ये 2 प्लस 1 3 और 2 यहाँ पर तो 6b माइनस, और ये 2 हो जाएगा माइनस 2b, तो ये हो जाएगा 4b। यहाँ तक जब आएगा यानी 2 से 6 तक आएगा तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 4b, तो यहाँ से 4b आ जाता है। और सो लाइंस विल अपीयर एट 4b, यहाँ पर इसमें 4b पर देयर विल बी अ लाइन इन द रोटेशनल स्पेक्ट्रा एट 4b। इसी तरह फर्दर जब व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम 2 to 3, फिर क्या होगा, व्हेन j इज इक्वल टू 2 से j इज इक्वल टू 3 तक, देन चेंज इन एनर्जी विल बी इक्वल टू वेव नंबर in 3 minus wave number in 2, and this will be equal to b j plus 1 in 3 minus b j and j plus 1 in 2। तो क्या डिफरेंस आ जाएगा, 3 पुट कर लेते हैं इसमें, 3 और 1 4 12b माइनस, और यहाँ पर 2 पुट करते हैं 3 और 6b, तो क्या हो जाएगा 6b। यानी यहाँ से जब यहाँ तक आता है तो ये 6b, 6 से 12 में आता है तो 6b, यहाँ पर एक लाइन 6b पर इसके लिए, एंड सो ऑन। अब अगर इसको जनरलाइज करते हैं, अगर हम इसको जनरलाइज करते हैं कि j इज इक्वल टू j से j इज इक्वल टू j प्लस 1 तक जाता है, तो फिर क्या होगा, so this will be equal to change in wave number will be equal to wave number when it is in j plus 1 minus wave number when it is in j। तो ये हो जाएगा b j इंटू j प्लस 1, और ये जब हो j प्लस 1 स्टेट में माइनस b j और j प्लस 1, और जब ये हो j स्टेट में, ठीक। अब इधर j की बजाय j प्लस 1 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा b, ये j हो जाएगा j प्लस 1, और ये j हो जाएगा j प्लस 1 प्लस 1, ये एक स्टेट माइनस, और b j इंटू j प्लस 1, ये हो गया j स्टेट में। इसको
is equal to B into J plus 1 और ये हो जाए J plus 2 एक टर्म्स माइनस B J into J plus 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा B into J स्क्वेयर और 2J और फिर J प्लस 2 माइनस B ये हो जाएगा B J स्क्वेयर और प्लस माइनस B और J, ये B भी साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो B J स्क्वेयर प्लस ये 3J हो जाएगा, सो 3BJ और प्लस 2B माइनस BJ स्क्वेयर माइनस BJ, इसमें से BJ स्क्वेयर और BJ स्क्वेयर ये कैंसिल हो जाएगा, 3BJ माइनस BJ तो ये हो जाएगा 2BJ माइनस 2B। अब इसमें से 2B कॉमन लेते हैं, 2B 1 आना चाहिए ना, आज 2B है प्लस है, 2B कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा J plus 1 is change in energy. This equation gives the absorptions or emission during the generalized form में है ना। अब फॉर एग्जांपल when J को 0 से 1 तक अगर हो, 0 से 1 तक हो तो J इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, तो ये 1 और 1 2 और 4 0 0 प्लस 1 हो जाएगा, इसे 2B आ जाएगा ना, 2B ये 2B पर है। और जब 1 से 2 तक हो तो फिर यहाँ पर 1 पुट कर लेते हैं तो 1 और 1 2 हो जाएगा और 2 and 2 4B ये 4B, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 4B का डिफरेंस है ना। इसी तरह 2 से जब 3 तक जाता हो तो इधर 2 पुट कर लेंगे तो 2 3 और 6B तो ये 6B है। इस तरह 3 से जब 4 तक जाता है तो इधर जब 3 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 + 4 और 8B, यानी यहाँ से 3 से जब 4 तक जाएगा 12 से 20 तक जाता है तो डिफरेंस क्या है 8B, तो यहाँ इधर आ जाएगा 8B पर इसके लिए एक लाइंस आ जाती है, लाइन स्पेक्ट्रम एंड सो ऑन। So this explain the rotational spectra. Rigid rotator can be used to explain the rotational spectra of a diatomic molecule.